Hello and welcome to the final countdown, a special show in the lead up to the exit polls and the final verdict of the 2024 general elections. We'll be going through key states and regions that will decide on who will rule from Raisina Hills. If Uttar Pradesh was a country, then it would have been the world's fifth most populous nation. 9 out of 14 Indian prime ministers have been elected from Uttar Pradesh, and the state sends the maximum number of members of parliament to the Lok Sabha, 80 MPs. No wonder the route to the national capital, Delhi, is through Uttar Pradesh. Now, UP is a BJP bastion. The party won 71 seats here in 2014 and 62 seats in 2019. And for this very reason, the India Alliance needs to revive itself in this crucial poll battleground for any chance to challenge the might of the BJP. The question we are asking today is, can the India Alliance make a dent in Uttar Pradesh? Before a deep dive into our main topic, let's take a quick look at the Uttar Pradesh battleground. We are looking at a three-cornered contest, the SP, BSP, RLD versus the BJP versus the Congress. In 2024, the Jats, Dalits and non-Yadav OBCs are with the NDA. Jayant Chaudhary's RLD could make an impact in Western UP. The BSP, interestingly, is contesting on all the 80 seats. We're going to be looking at the impact of these triangular contests on the 2024 elections. In the 2019 elections, the BJP contested 78 seats. It won 62. It had a vote share of 50%. Its ally, the Apna Dal, Sonilal Party, contested 2 seats. It won both of them. It had a vote share of 1.2%. And against the BJP were the BSP, the SP, the RLD and the Indian National Congress. All of these won 10 seats. The BSP won the largest number of seats among them, 10 seats. The SP, 5 seats. The RLD drew a blank and the Congress got just 1 seat. It's lowest in any election post-independence. Now in 2014, the BJP contested 78 seats. It won 71 of those seats with a vote share of 42%. The Apna Dal won both seats it contested. The Samajwadi Party, interestingly, contested 78 seats. It won just 5 of them. The BSP, 80 seats, drew a blank in all of them. The Indian National Congress, 67 seats, won just 2 of them, Amethi and Raebareli. And finally, the Rashtriya Lok Dal contested 8 seats and drew a blank on all of them. Let's listen into what the key stakeholders have to say about the crucial poll battle. अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। जो लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बताओ अच्छे दिन आए किसी के नहीं आए? ना अच्छे दिन आए, ना किसी के अकाउंट में कुछ आया। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि 4 तारीख को जब जीतेंगे तो कम से कम खुशियों के दिन आएंगे और हमें और आपको जौनपुर की इमरती खाने को मिलेगी। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे
तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति हो, गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट की राजनीति हो। ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। ये 2024 का जो चुनाव है, ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद, इसके अगेंस्ट वोट फॉर विकास का चुनाव है। ये चुनाव परिवार के कल्याण, अपने परिवार के कल्याण के विरोध देश की जनता के कल्याण का चुनाव है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का चुनाव है। एक देश के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, जहां जाते हैं वहां पर अपना एक झूठा रिश्ता निकाल लेते हैं। वो भी देखने और सुनने कि राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। पांच साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी।